So it was good. It was quite lengthy because ethics में काफ़ी lengthy descriptive kind of questions थे section A में. Although section B was more or less on the same lines, but the options given were different. I'd say it was just more lengthy. बहुत लेंदी था। लेंदी क्या लेंदी क्या लग रहा है इसमें? अरे पूरे इतने बड़े क्वेश्चंस थे। एग्जाम्पल्स माइंड मैप्स तो हजारों रटे हुए थे लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में उस तरीके से इम्प्लीमेंट Apply करना होगा बहुत कि नहीं होगा? घर से बैठ के जज करना बहुत ईजी। बहुत सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब आपको जैसे मैं ही GS1 अभी परसों दे करके आया तो नहीं कल दिया क्या है तो पूछ रहे थे कि अरे इजी तो आया है पेपर। मैं पहला ही क्वेश्चन था वो मिडिवल स्कल्पचर्स का। मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी भी आपको क्वेश्चन पता है ना, आप मेरे को 2 एग्जांपल अभी दे दो। नहीं आता है उस समय याद। और ऐसा अगर शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे डल जाए ना तो मोरल डाउन हो जाता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड देन एप्टीट्यूड, हाउ वाज दैट? एथिक्स के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसा है कि कंटेंट ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है, पर ऐसा है कि हम उसे कंसाइज और ब्यूटीफुली डाल नहीं पाओगे आप 6 मिनट के अंदर। शुरू के क्वेश्चंस काफ़ी वेग दे रही है तो उससे क्या होता है आदमी टाइम भी ज़्यादा लगता है, सोचता भी है। और नीचे के जो लिखने वाले क्वेश्चन है केस स्टडी छोड़ के वो थोड़े ईजी थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे आदमी तब तक पेपर ही छूट जाता है। So it was good. It was quite lengthy because ethics में काफ़ी lengthy descriptive kind of questions थे section A में. Although section B was more or less on the same lines, but the options given were different. Because first of all, last year ऐसे होता था या अभी तक ऐसे होता था that we were asked to just choose some write some options and then choose a course of action, but right now they've already mentioned the courses of actions in the question itself, and then they have asked कि further options क्या हैं, then they've asked कि critically analyze करो. So you write the options on first part, and then second way you have to rewrite them, these options, and then you have to evaluate them, and then in the next part you have to choose your appropriate course of action, and in the next part you finally have to go for further futuristic measures, which was quite lengthy. So paper completion was a big So ma'am, everyone saying that it was lengthy. So how was it possible to manage all these things within 3 hours? टाइम कंस्टेंट होता है, कैसे मैनेज किया आपने? सो स्पीड बहुत फास्ट रखी विदाउट गिविंग एनी हीट टू द राइटिंग क्वालिटी. आई एम जस्ट होपिंग कि एग्जामिनर को राइटिंग मेरी समझ आ जाए. अदरवाइज if we just go for completing the questions in all its dimensions, it wouldn't have been possible. Rather than completing all of the questions in all of the dimensions, it's better to attempt all of the questions and write little in each and every question. So ma'am, if we compare this year question and previous year, so how it is different today, this time, right? Yeah, it is different, quite different. So, because it was lengthier. Last year was quite on the बेसिकली जो सोचा था वैसे ही ऑन दोज लाइंस ही था. इस बार काफ़ी सिमिलर केस स्टडीज़ थी, तो काफ़ी सिमिलर होने के कारण जो ऑप्शंस हम मेंशन करते हैं वो भी बहुत मुश्किल हो गया मेंशन करना. मैम ये क्या अटेम्प्ट है आपका? सो दिस इज माय 6th attempt. 6th attempt. Yeah. And what is your optional paper? फिलोसफी. और लैंग्वेज मैम? लैंग्वेज हिंदी रहेगा. हिंदी में लिखा आपने? नहीं इंग्लिश. आई थॉट कि आप लैंग्वेज पेपर पूछ रहे हैं. So ma'am, I pray and I wish that you should go for interview in UPSC Bhavan, so much. and I'm just praying for you and all the best and God bless. Thank you so much, and it's amazing that you guys are taking Thank you. feedback. Thank you. Ethics, integrity and then aptitude. How was that? It was easy only. So compare अगर करें लास्ट ईयर के पेपर से तो इस बार कैसा रहा? I want to go right. जीएस बच्चे कहते हैं कि एथिक्स बहुत आसान होता है, कुछ बच्चे अपने से तैयार कर लेते हैं. आप इसको Application based this time. Yeah. इंटीग्रिटी इसमें किस तरह से क्वेश्चन थे? मतलब you have to apply those concepts. अच्छा, In your- अगर इस साल के एक पेपर को लास्ट एक पेपर से कंपेयर करेंगे GS4 तो कैसा आप इसको मेजर करते हैं? I'd say it was just more lengthy. The questions were more lengthy. So ये क्या अटेम्प्ट है मैम आपका? Sorry? ये क्या अटेम्प्ट है आपका? Which attempt is this? Third. और ऑप्शनल पेपर? English literature. पेपर कैसे रहे सर? बहुत लेंदी था। लेंदी क्या लग रहा है इसमें? अरे पूरे इतने बड़े क्वेश्चंस थे। पेपर तो काफ़ी हार्ड था. लेंदी बता रहे हैं, लेंदी था. लेंदी काफ़ी था. केस स्टडी लेंदी थी अच्छा. और थ्योरी क्वेश्चन भी लेंदी थे काफ़ी. और थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया. जैसे एक शॉर्ट नोट्स वाला आया था जिसके 3 पेज दे दिए थे, तो जैसे उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने थे और 5 टॉपिक्स दिए गए थे, तो वो काफ़ी लेंदी पड़ा था, तो उसमें टाइम चला गया था. और केस स्टडी सारी
एक एक 1.5 पेज की थी और सब में 4-5 क्वेश्चन थे। तो मतलब कैसे इसको कैसे मैनेज करेंगे इतनी सारी चीज़ें 3 घंटे में, ये समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे कर, मतलब आप लोग को छूटा नहीं कुछ, मतलब क्वेश्चन जो थे? मतलब एक क्वेश्चन आधा छूट गया था। अच्छा। मेन इसका मेरे ख्याल से तो यही है कि प्रैक्टिस है, ज़्यादा टेस्ट लगाओ और जो टाइम लिमिट है उसकी उस पर उसको छोड़ दो, खत्म कर दो उसमें, मतलब उसको खींचो मत। किया है कि 6 मिनट में क्वेश्चन करना है तो 6 मिनट पे वहीं कंक्लूड वहीं कर छोड़ दो। नहीं तो जैसे उसमें लिख करके भी 1 नंबर ज़्यादा पा जाएगा, ऐसे छूटेगा तो 20 नंबर का छूट जाएगा। बहुत ही टेक्निकल बात सही कह रहे हैं सर। तो आपका कैसा पेपर गया? मतलब ऑब्वियसली अगर टफ है तो सभी के लिए है। वेग आया था बहुत पेपर, जैसे शुरू के क्वेश्चंस काफ़ी वेग दे दिए थे, तो उससे क्या होता है आदमी टाइम भी ज़्यादा लगता है, सोचता भी है। और नीचे के जो लिखने वाले क्वेश्चन थे केस स्टडी छोड़ के वो थोड़े इजी थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे आदमी तब तक पेपर ही छूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइकोलॉजिकली आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि एथिक्स क्या है, हम तो कर लेंगे और उसकी ज़रूरत नहीं, पढ़ने की नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट, तो कैसा लगता है आपको ये, मतलब सही है लोगों का सोच या फिर क्या करना चाहिए? एथिक्स के लिए और मेहनत करनी है या फिर क्या है? एथिक्स के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें ये ऐसा है कि कंटेंट ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है, पर ऐसा है कि हम उसे कंसाइज और ब्यूटीफुली डाल नहीं पाओगे आप 6 मिनट के अंदर। आपको 6 मिनट मिलेगा थ्योरी के अंदर और आपको 15 मिनट मिलेगा केस स्टडी में, तो वो आपसे होगा नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कमी है, कंटेंट है और कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, टेलीग्राम पे एग्जाम्पल सब है, पर तुम कर नहीं पाओगे 15 मिनट में। यूपीएस नहीं आता है मेन तो वहाँ पे 6 मिनट में आपको कैसे इसी चीज़ याद कैसे रखेंगे हम? प्रैक्टिस ही कर सकता है आदमी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन के PYQ देख करके, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। केस स्टडी की अच्छे तरीके से बनाने का क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए सर? बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे आज भी 1-2 क्वेश्चन तो केस स्टडीज के रिपीटेड थे PYQ से। थीम रिपीटेड थे, तो बेसिकली थीम रिपीट होती है कि जैसे एनवायरनमेंट का हर ही साल पूछ दे रहा है। अच्छा। ऐसे करप्शन का पूछ ले रहा है, तो उसके ना पहले से नोट्स बना के रखो कि भाई अगर करप्शन पे आएगा थीम बेस्ड तो ये ऐसे ऐसे लिख लूँगा। और बाकी तो अनकन्वेंशनल पेपर है, कुछ भी चेंज कर सकता है, तो हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कुछ भी ऐसे हो सकता है कि माइंड पहले से नहीं बना के जाना चाहिए कि ऐसा ही आएगा, क्योंकि अनकन्वेंशनल। अब इसी बार हमेशा शुरू में इजी क्वेश्चन डालता था कि डेफिनेशन पूछ ले, ये इस बार एकदम वेग पूछा है, थॉट बेस्ड पूछा है, थियरी क्वेश्चंस भी बहुत लंबे थे, तो इसलिए बहुत, और सारे पेपर ऐसे हैं। ओवरऑल प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है इन सब सारे चीज़ों के लिए। तो आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब हाउ यू परफॉर्म? ठीक है, लेंदी था, सभी के लिए लेंदी है, तो ओवरऑल अगर देखें तो कैसा लगा, मतलब आप कैसा डिलीवर किया आपने GS पेपर 4? मुझे लग रहा थोड़े एग्जाम्पल मैंने कम डाले। अच्छा। और एग्जाम्पल डाल सकते थे थोड़े से। एग्जाम्पल और वो कुछ चार्ट वगैरह भी डालनी होती है, डायग्राम वगैरह, इसमें ज़रूरत है क्या? स्कीमेटिक डाल सकते थे पर टाइम मिला नहीं, मतलब सोच के हम आए थे कि स्कीमेटिक भी डालेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे, पर माइंड मैप जो होती है उसको, एग्जाम्पल्स माइंड मैप्स तो हज़ारों रटे हुए थे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैठता है कि नहीं बैठता, अननेसेसरी देंगे तो फिर वो गए। इस बार तो पेपर भी सारा आई थिंक किसी के लिए, जैसे सबकी अपनी अपनी डोमेन एक्सपर्टीज़ है, तो किसी को ज्योग्राफी इजी लग रही है, किसी को वही बहुत टफ लग रहा है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि आप कंफर्टेबल किस में हो। दूसरी बात, घर से बैठ के जज करना बहुत ईजी, बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जब आपको, जैसे मैं ही GS1 अभी परसों दे करके आया, तो नहीं कल दिया क्या है, तो पूछ रहे थे कि यार इजी तो आया है पेपर। मैं पहला ही क्वेश्चन था वो मिडिवल स्कल्पचर्स का, मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी भी, आपको क्वेश्चन पता है ना, आप मेरे को 2 एग्जांपल अभी दे दो, नहीं आता है उस समय याद। और ऐसा अगर शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे डल जाए ना, तो मोरल डाउन हो जाता है बाकी पेपर। ये बात सही कह रहे हैं, शुरू में ही टफ, अगर आप टफर साइड में गए तो, क्योंकि GS1 में ऐसा किया कि शुरू में बहुत टफ दिया, फिर नीचे इजी, और होता क्या ना, उस समय तक इजी क्वेश्चन तक पहुंचते हुए तो टाइम ही रहता है कि 2 मिनट में क्वेश्चन आपको लिखना है 2 पेज, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है ना, क्योंकि शुरू में आपने बहुत सोच के लिखा। मेन जो टाइम को मैनेज कर सकता है, जो टाइम को मैनेज कर सकता है ना, वो ओवरऑल आगे है, भले उसके पास कंटेंट कम हो, पर टाइम इज इम्पोर्टेंट, कंप्लीट तो कर लेगा। आप लोग का ऑप्शनल पेपर क्या है सर? मेरा साइकोलॉजी। आपके सर? लॉ है, तो 25 तारीख आई थिंक 25 को है, तो अभी 1 सप्ताह हैं, तो आप लोग प्रिपेयर करेंगे इसके लिए? मैं तो अभी से जाके करूँगा, करना बहुत है अभी। करना तो पड़ेगा ही, बहुत लेंदी भी तो है। ये अटेम्प्ट कौन सा अटेम्प्ट था सर? मेरा ये सेकंड मेंस था, 3rd अटेम्प्ट है। और आपका सर? मेरा फर्स्ट मेंस है, 2nd अटेम्प्ट। सो मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि भगवान आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि आप UPSC भवन में इंटरव्यू के लिए जाएं आफ्टर क्लियरिंग मेंस। धन्यवाद सर। इससे प्रभात वाला जो पहला क्वेश्चन था,
वो अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम लिया है। मतलब ज़्यादातर बच्चों ने अगर उसमें उलझ गए तो जो 20-25 मिनट एक्स्ट्रा है वो चले जाएंगे उसमें। तो सर ये लेंदी है, 3 घंटे में कैसे ये सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब इन सारी चीज़ों को हम 3 घंटे में कंप्लीट करें और वो भी सही तरीके से? लास्ट ईयर के जो सोल्ड क्वेश्चंस है उनको देख सकते हैं। टॉपर्स की जो कॉपीज़ होती है वो अच्छा है, गाइडेंस देती है। उसमें लैंग्वेज भी समझ में आता है, कंटेंट क्या डालना चाहिए उसका भी आइडिया लगता है। क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो फिर उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होता है, 3 पेज का 4 पेज का रहता है। लेकिन जो टाइम के अंदर है, क्या लैंग्वेज होना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए, कितने वर्ड्स में होना चाहिए, वो टॉपर्स की कॉपी से अच्छा होता है। सर केस स्टडी को बहुत अच्छे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस्ट केस स्टडी कैसे लिखा जाता है? बेस्ट सर रिलेटिव रहता है। वैसे मेरा पहला मेंस है तो अच्छा, बेस्ट पहला मेंस है। अरे वाह, पहला मेंस है। और ऑप्शनल पेपर क्या है सर आपके? ऑप्शनल अभी है। हाँ, मतलब कौन से ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है। और पहला अटैम्प्ट है सर लैंग्वेज इंग्लिश है ऑब्वियसली। हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं दुआ करता हूँ कि आप यूपीएससी भवन जाएँ इंटरव्यू के लिए एंड देन फाइनल सिलेक्शन हो आपका। थैंक यू सर। चलिए सर।